آپ کے نمائندے کو آپ کی نمائندگی سے روکا جائے. تو آج میں سارے مسائل جو تھے، مرحلے جو تھے، پار کر کے آپ کے پاس، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج میری بات کرنے کے بجائے آپ اپنے ذہن میں جو آپ کے سوالات جنم دیتے تھے بیفور دس اریسٹ، وہ آپ کریں. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سوال کریں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل جو پاکستان کی ایک تاریخی کامیابی ہوئی ہے، جو شاید جب سے پاکستان بنا ہے اور کرکٹ شروع ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک ایسی کامیابی پاکستان کو کہیں نہیں ملی، اور وہ بھی انڈیا کے خلاف. تو یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے خوشی کا باعث ہے اور قابل احترام ہے وہ بچے جن لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ کرکٹ میچ جیتا. تو یہ میں یہ بھی کہوں گا ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے پولیٹیشین نہیں، کہ جب جیتتے ہیں تو آپ ان کے گھروں پہ ہار لے کے پہنچ جاتے ہیں. جب انفارچونیٹلی وہ ہار جاتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر خطرناک ہوتا ہے. کم سے کم اس گیم کے بعد یہ رویہ ہمیں ترک کرنا چاہیے. تھینک یو جی. ابھی آپ کو سر، پاکستان نے جو کل بھارت کا غرور خاک پہ بلایا تو بھارت نے کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنی ہار کا بدلہ بھارتی مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا ہے. ان کے گھروں پر تشدد کیا جا رہا ہے. ان جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو روک کر جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شاہ صاحب اس میں ایڈ یہ بھی کروں گا، محمد شامی جو فاسٹ بالر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے غدار ہے. دیکھیں، ایک کمزور پچ پہ کھیلنے والے سے امید یہی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تک ہمارے کشمیری بھائی جو ظلم کو برداشت کیے ہوئے ہیں 3-3.5 سال سے، ایسے تو 75 سال ہو گئے ہیں، وہ مسلسل جو قید و تنہائی اور جو کرفیو، قتل، شہادتیں جو ہو رہی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اگر پاکستان جو ہے وہ اپنی مذہبی جو عقائد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہی کام کرتا ہے جو اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو قرآن میں حکم ہے. شاہ صاحب 25 مہینے آپ کا ٹرائل کیا، حاصل کچھ نہیں ہوا، اس کے اگینسٹ آپ کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو کیس چل رہا ہے، ابھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا سوال بہت اہم کچھ ہوگا. تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی لائحہ تیار کریں جو فردر ٹائم ہے تو کچھ سکون سے گزرے، یہ طریقہ کار نہ ہو. اچھا، بس آپ کے ساتھ unfortunate- جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے بلایا، میں بھی ایک پیشی بھگت کر آیا ہوں، حاصل اس کو مشکل نہیں. دیکھیں، جھوٹ کو پاؤں نہیں ہوتے، یہی فرق ہے سچ میں اور جھوٹ میں. سچ کو پاؤں ہوتے ہیں، جھوٹ کو پاؤں نہیں ہوتے. اور یہ جھوٹا کیس تھا اور سیاسی کیس تھا اور انتقامی کیس تھا، اور انتقامی کیس بنایا گیا ہے. اور الحمدللہ میں تو خوش ہوں کہ اس حکومت کا احسان مند بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں جو لوگوں کو ذہن میں سوچیں تھی وہ صاف کر دی. شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ صادق اور امین کی حکومت ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان برپا ہے. اس کھلاڑی کی جو دعوے دار تھے کہ میرے پاس معاشی ایکسپرٹ موجود ہے، ٹیم موجود ہے، آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی ٹیم کہاں چلی؟ دیکھیں، میں کسی پہ الزام تراشیوں کی بات نہیں کرتا ہمیشہ کہ کسی کو چور کہہ کے اپنی جان چھڑا لے آدمی.
असल ये है कि इसने अवाम पाकिस्तान के अवाम से बड़ा धोखा किया है और उनको दिखाया एक है, किया दूसरा है। उसको सब पता था कि मुझे कुछ पता नहीं है, उसको सब पता था कि मुझे कुछ पता नहीं है। इनको जब अपोजिशन में मेरे साथ होते तो यही कहते थे कि हम तैयार हैं, हम 90 डेज़ के अंदर सारे पाकिस्तान के मसाइल हल कर देंगे। ये उनकी रिकॉर्ड की बातें हैं और मीडिया वो दिखाती भी है। तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, वैसा घाती हुआ पाकिस्तान के नौजवानों के साथ भी, नौजवानों के अवाम के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। और इसलिए कहते हैं कि जमहूरियत इसलिए है कि आदमी सोच समझ के फैसले करे। अब वो जमहूरियत से भाग रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। वो एक डिक्टेटर बनना पसंद कर रहा है। वो कहता है कि मैं बादशाहत कायम करूँ, शहनशाहियत कायम करूँ। तो उसी तरफ वो सोचना चाहता है, सोच रहा है और पाकिस्तान को इन हालात में लाकर खड़ा किया है कि आज बेरोज़गारी, महंगाई सोच से बढ़कर है। एक ही हमारा सेक्टर था जो कुछ मूव हुआ था, अभी वो भी रुक गया है। वो था कंस्ट्रक्शन का। इतना महंगा लोहा कर दिया है, इतना सीमेंट महंगा कर दिया है, इतना मटेरियल महंगा कर दिया है कि जो लोगों को 50 लाख घर देने थे, अब वो सोच भी नहीं सकते कि झुग्गी बना सकते। मुल्क इस वक्त इतना ही इंतहाई अहम दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त भी अपोजिशन जो है वो अलग अलग एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ अलग एहतजाज कर रही है, जबकि दीगर जमातें जो अलग एहतजाज कर रही हैं। आप जो है तमाम जमातों को साथ लेके भी चले अपोजिशन में रहते हुए, तो आप क्या देखें, अगर हमें ये बात जहन में डालनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की मुखालिफ नहीं है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान रियासत है, उनकी जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। हम सियासतदानों को ये बात सोचनी चाहिए। ये कोई कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है अकेली। जब भी कोई इत्तेहाद होता है तो हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी सोच होती है, वन पॉइंट एजेंडा होता है। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी कारकर्दगी है, उनकी अपनी सियासत है। लोग फिर उसको कैसे समझते हैं। उसमें इस किस्म की बात सोचना कि शायद ये पार्टी इत्तेहाद नहीं, ये पार्टी है, तो वो चीज़ें जो है वो नुकसान देती है। हमें सबको मिल के सोचना चाहिए, बड़े काज के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। शाह साहब, शाह साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, नया कायदे अवान मुंतखब करने की तैयारी हो रही है। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में हवाओं का रुख चेंज हो रहा है और एक बार फिर अगरचे अपोजिशन मुतहद होकर वार करे तो फिर पंजाब में भी चेंजिंग आ सकती है और वफाक में भी आ सकती है? देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज ये मुश्किल काम नहीं है, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा लूज़र पाकिस्तान के अवाम होते हैं। अनसर्टेनिटी बड़ी ख़तरनाक है और अनसर्टेनिटी इस हुकूमत ने पैदा की है, उनके बुज़ुर्गों ने पैदा की है। ऐसी सियासत हमने कभी नहीं देखी थी जो आज देख रहे हैं, जो मुकम्मल झूठ पे है। घबराना नहीं की सियासत है, नोटिस लेने की सियासत है, आगे कुछ नहीं है। तो जो आज मौजूदा पोजीशन है, उन लोगों ने अवाम को, सारे तबके जो हैं उनको कंफ्यूज किया हुआ है। और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई पार्टी भी ये रिस्क लेगी कि ₹250 का, और जब तक होगा $200 का डॉलर लेके
और 150 रुपये का तेल लेके 1 लीटर और 250 का चीनी लेके 100 का आटा लेके मार्केट में जाएंगे कि वोट लो। कोई ऐसी पार्टी नहीं। शाह साहब, अब तक ISI चीफ का मामला हल नहीं हो सका, DG जो है चीफ ISI का मामला हल नहीं हो सका है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है, जिस तरह CM ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि सिलेक्टर्स अब न्यूट्रल होने जा रहे हैं? देखिए, सिलेक्टर या नॉन सिलेक्टर का मसला नहीं है। जो DG ISI का मसला है वो काबिल अफसोस है। एक अदारा है जिस अदारे की सब बात करते हैं, उस अदारे का एक डिसिप्लिन है। मौजूदा हुक्मरान ने उस डिसिप्लिन को तार तार कर दिया और ऐसा माहौल बनाया है जिससे हर तबका फ़िक्र जो है परेशान है कि क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो आप मुझसे सवालात करते हैं इसी के गिर्द घूम रही है। ये खुल के कोई नहीं कहता, जैसे भी आपने कहा, मगर इसके गिर्द घूम रही है क्या हो रहा है। तो इस हुकूमत ने किसी को नहीं छोड़ा है। इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा है, खुद लेके आए। नेब को कमज़ोर कर देना, नेब को पॉलिटिसाइज कर देना, अस्करी जो हमारा अदारा है उसमें इस किस्म के हालात पैदा कर देना जो कभी नहीं हुए। कोई हालात भी पैदा हुए कभी नहीं हुए ऐसे हालात। और जो अमिकबली हल करने जैसे है, और आर्मी चीफ 2-3 मरतबा दौरे भी कर चुका, डिस्कशंस भी आई, आपने भी लिखा, हर अदारे ने लिखा। इससे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है और हमारा मुखालिफ जो है, दुश्मन है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शाहजाद, मेरा सवाल है आपसे। सबसे पहले तो आपको आज़ादी फौज से की तरफ से शानदार इस्तकबाल करने का मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ ये जब आप कैद सलासत में थे तो बातें गर्दिश कर दी कि आपको PTI में शमूलियत के लिए कोई प्रेशर था या डाला गया था। इसी के साथ IMF ने $1 अरब देने के लिए नए शर्त लागू कर दी है कि कमर्शियल बैंक के जो अकाउंट्स हैं सरकारी इदारों के वो ख़त्म किए जाएँ, 17% स्टेट सेल्स टैक्स बढ़ाया जाए और जो टैक्स की छूट है वो ख़त्म किया जाए। क्या एक बार नया और तूफान महंगाई का आने वाला? देखिए, सिंधी में कहावत है, डुबरे ढो रखे मच्छर बिखरना। जो कमज़ोर होता है उन पर दबाव भी ज़्यादा बढ़ता है, जो पीछे बढ़ होता है उस पर पीछे और करने के लिए दबाव होता है। हम ये हुकूमत ने जो ब्लंडर किए उसमें एक ब्लंडर ये भी था कि मैं ख़ुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। उसके बाद ये गिड़गिड़ाते हुए वहाँ गए और लोगों ने देखा कि ये बंदा वो है जिसने हमसे मिलने के लिए ख़ुदकशी की बात की थी और किसी ने उस पर दबाव भी नहीं डाला था। और ये बंदा वो है कि कहता है कि $200 अरब आएंगे, $100 अरब इन सब के मुंह पे डालेंगे और $100 अरब से हम पाकिस्तान को चलाएंगे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है आज दावा करते हैं बड़ी है। कौन सी बड़ी है मुझे बताएं कि रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त तक हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट बढ़ी थी, जो भी कम है, तारीफ के लायक भी नहीं है, मैं ये भी हकीकत करता हूँ। 2012 में हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी $25 बिलियन और अभी तक वो नहीं बढ़े हैं। यानी 9-10 साल हुए। जिस वक्त हमारी एक्सपोर्ट थी उस वक्त डॉलर का रेट 80 रुपये था, जब 25 अरब। आज अगर ये 25 अरब डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत पौने 200 रुपये है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस हद तक आप अपने आप को बचा लेते। इम्पोर्ट ये लोग जो है वो कम हुई है, कहते हैं कि वो जो एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ दी अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो बड़ा कम हुआ है। एग्जैक्टली कम हुआ, शाह साहब एग्जैक्टली कम हुआ है कि वो जितना आपके
इम्पॉर्टेंट थी उससे एक्सपोर्ट बढ़ती, वो आप न मंगा कर आपने अपनी एक्सपोर्ट को कम किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतनी गाड़ियां आई, भाई आई ना, उसके गुड इंपोर्ट नहीं थी ये। गुड इंपोर्ट वो होती है जो आपके एक्सपोर्ट में काम आए। ये गाड़ियां सुर्खी पाउडर मंगा के कहते उसको बंद कर दिया, अब हम गुड इंपोर्ट पे जाएंगे। कौन सा गुड इंपोर्ट किया? कारखाने बंद हो रहे हैं, टेक्सटाइल रुक रही है, बिजली महंगाई इतनी हो गई है कि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एग्रीकल्चर में हालत ये है कि 2010 में 2011 में डीएपी की पोजीशन 2500 रुपये थी, आज 7000 रुपये है। यूरिया 1100 था, आज 2000 है। इसमें इन लोगों ने डबल डिजिट किया, ये मानेंगे। तो हर सेक्टर को इसने हिट किया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का हामी। शाह साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर ने बयान दिया लंदन में कि डॉलर बढ़ने से जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनका बड़ा फ़ायदा हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सन ऑफ सॉइल तो कह देना ये है कि जो पले बड़े हुए वहाँ उनकी सोच भी वही हो। जो पाकिस्तान के सरजमीन के लोगों की भूख और फलास को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि कोई गरीब आदमी आखिर बच्चे उनके भूखे मरते हैं तो नमक पानी में डाल के रोटी से खिलाते हैं बच्चों को। इनको उनका एहसास नहीं है, इनको अपने लिए एहसास है। अब ये समझ लें कि 0.5% लोग भी बाहर नहीं है, हमारे 0.5% भी नहीं है। 99.5% लोग भूखे मरे, 0.5% हो गए। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको आने वाले वक्त के लिए ओवरसीज के वोट की ज़रूरत है, इसलिए ईवीएम का प्रॉब्लम है इनके पास। और ईवीएम वो है जो ये ईवीएम दे रहे हैं, वो ये है, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा था 3 सालों में नाकाम हो चुकी है, मतलब महंगाई हर हवाले से। लेकिन अगर हम सिंध में देखें तो मुसलसल 13 साल से पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हर शोबे में, हर हवाले से। अगर मजीद इनको 5 साल हुकूमत मिलेगी होगी पीपुल्स पार्टी को ही, तो सिंध के अवाम के लिए इनका क्या प्लान है, आगे क्या होगा? देखिए, मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि सक्खर में रहने वाले आदमी, आप खैरपुर की बात न करें तो मानने के लिए तैयार है। खैरपुर ठट्ठे की बात करें तो चलो बातें, कम से कम सक्खर में रहने वाले लोग तो ऐसी बातें ना करें। आप अपने ईमान के तहत कहें, कल के सक्खर को और आज के सक्खर को देख लें ईमान के तहत। ये मैं अपने घर से तो नहीं ले आया ऐसी बातें। आज मैं सक्खर में बैठ के सक्खर की बात करूंगा, आप सक्खर में बैठ के सक्खर का सवाल करेंगे। जब इंटरनेशनल मीडिया में हम जाएंगे तो फिर हम वो बात करेंगे। फिर आप घर को देख के फिर रेफरेंस देंगे ना। आपके मुझे बताएं कि कहाँ, हाँ बिल्कुल इस हद तक ठीक है कि सक्खर के हालात बहुत ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70% अचीव किया। स्कूल्स हमारे बन रहे हैं, हमारे रोड हमारे बन रहे हैं। जो किसी ने सोचा नहीं था वहाँ तक रोड चले गए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल्स इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर पब्लिक में दिया जा रहा है, स्कूलों में दिया जा रहा है, अस्पतालें बनाई जा रही हैं। आपके सामने है अस्पतालें कितनी बनी है। SIUT 1, SIUT 2, SIUT 3, SIUT 4, NICVD, NCHD, बच्चों का अस्पताल, बच्चों की इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक अलग ब्लॉक, और गुलाम अहमद यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल उसमें असेंबली में गया है। आपका ज़ियाउद्दीन अस्पताल हम यहाँ लेके आए हैं। आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ लेके आए हैं। आपका रिंग रोड यहाँ बना है। आपके शिकापुर रोड को 6-8 लाइन रोड बना है। आपके 7 रोड जो है आपके सक्खर में इंटर हो रहे हैं। मैं कहता हूँ वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जिसमें 7 रोड इन कर रहे हैं एक ही वक्त में शहर के अंदर। बहुत सी चीज़ें हैं जो बन रही है। शहर के अंदर लोग दरियाओं के अंदर बसे हुए थे, उनको निकाल के दरियाओं को ठीक किया गया है। क्या नहीं किया है, बाकी चीज़ें हैं। अल्लाह की दुनिया है। अमेरिका जैसे मुल्क में वीरानियाँ हैं,
वहाँ भी मसाइल है, तो आप कम से कम अप्रिशिएट न करें तो ऐसा तो न करें। शाह साहब, जैसे आपने बलूचिस्तान के हवाले से पहले जैसे लाला असद साहब के क्वेश्चन पे जवाब दिया, मगर ये कि उस वक्त वज़ीर आला और उसके बाद स्पीकर दोनों रिजाइन कर गए, ये हालात उस तरफ हो रहे हैं। बलूचिस्तान में आप हुकूमत साजी कर चुके पहले, मगर उसके बाद अब आप क्या आज़ादी के बाद इस वक्त आप कोशिश करेंगे कि तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज पर ले आए, दोबारा से इकट्ठा करें और दोबारा से कोई नया महाज या हुकूमत के सामने कोई मेरी तरफ से मेरी बहुत कोशिश होगी। स्पीकर की इस्तीफा तो समझ में आती है वो क्यों दिया उसने, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह अपने जितने भी एफर्ट्स होंगे ज़िंदगी की सियासत में जो कुछ सीखा है इधर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूँगा कि अपोजिशन एक साथ हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे अमेरिका को मशरूत तौर पर देने का फैसला कर लिया है अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के हवाले से, और दो शराइत रखी गई हैं, एक तो इमदाद दी जाए, दूसरा जो इंडिया के साथ मसाइल चल रहे हैं वो हल कराया जाए। आप समझते हैं क्या ये पॉलिसी सही रहेगी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान? कोई भी इस हुकूमत से उम्मीद की जा सकती है, मैं उसकी तरदीद और तस्दीक नहीं करता, कोई भी इनमें से उम्मीद की जा सकती है। ये कल क्या थे आज क्या है। दुनिया के हर मुल्क कमज़ोर मुल्क से फ़ायदा उठाता है, उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता है। आप हमारी अवाम कमज़ोर बेचारी नहीं है, हमारी अवाम आज भी इतनी ताकतवर है जितनी 65 में थी। हमारी अवाम कमज़ोर नहीं है, हमारे हुक्मरान कमज़ोर हो जाते हैं। शाह साहब, जैसे कि आपने कहा की बात की और सिंधी की कहावत भी सुनाई, पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमातें जो कई कई दफ़ा हुकूमतों में रही हैं, वो तहरीक चलाती हैं तो उनके लीडरों पर नैब के केस बना के जेल में डाल दिया जाता है। बामुकाबला तहरीक लब्बैक हुकूमती तशद्दुद के मुकाबले पे तशद्दुद की राह इख्तियार करती तो उनके सारे मुतालबात मान लिए जाते हैं। तो ये सियासी जमातें क्यों नहीं? इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा शाह साहब, इसमें मैं तबसरा नहीं करता, बाकी आप समझ सकते। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के वाहिद जो दरवाज़ा है वो पार्लियामेंट है, और इस वक्त पार्लियामेंट को तौक़ीर देने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि अपोजिशन की जमातें अलग अलग रूट पे चल रही हैं, तो पार्लियामेंट को कौन बेहतर बनाएगा? हुकूमत उसको इग्नोर कर रही है, तो अपोजिशन किस तरह सुन? देखिए, मैं तो पहले दिन से पार्लियामेंट की बात करता हूँ, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करता हूँ, और आज हमारा मुल्क इसी वजह से जो 74-75 साल में हम पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी भागे हैं, आज उस चीज़ का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर आज भी हम पार्लियामेंट को वही तकद्दुस दे, वही ताकत बख्शे, वही एतमाद करें, और देखें आपके मुल्क का हर अदारा ताकतवर बनेगा। जब मुल्क का हर अदारा ताकतवर बनेगा तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम भी ताकतवर। शाह साहब, मेरा एक सवाल है, खबरें गर्दिश कर रही हैं साबका डीजी जो रेंजर्स से बिलाल अकबर, उनको चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है, क्या इस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में दिया गया है? ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों को इसके लिए मुशावरत की गई है। देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कानून आइन हमें इजाज़त नहीं देता बगैर मुशावरत के कोई रखा जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें हैं। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मशावरत करना आइन का एक हिस्सा है, और वो भी ऐसी मशावरत जिसका मकसद हासिल हो जाए। तो अभी ये बातें चलती हैं। बहुत सी बातें, जब सैलाब आता है तो लोग हर घर, परिंदे भी घोंसले छोड़ के भाग जाते हैं, हर बंदा अपना घर छोड़ के भागता है। इन हालात में जब ये हालात हैं तो इस किस्म की बातें होती रहती हैं। कल क्या ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी। शाह साहब, पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। सवाल आपसे था, आपका शानदार इस्तकबाल किया गया और आपने उस इस्तकबालिया जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें की गई। आज आप उन साजिशों को बेनकाब करेंगे कि साजिशें कहाँ से की गई और किस तरह की गई? मैंने साजिश नहीं की गई, ये मैंने नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिशें की गई। मैंने ये ज़रूर कहा
कि कुछ लोगों ने ये प्लान ज़रूर किया कि खुर्शीद शाह को पार्लियामेंट से बाहर निकाले और पार्लियामेंट की अपोजिशन में कोई दरार डाले, और वो कामयाब भी गए। और मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं अगर अंदर होता तो अपनी पार्टी के आगे भी हाथ जोड़ता और उनको भी बात को समझाता, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट के अंदर 8 मरतबा आना एक एतमाद की निशानी है, एक ताल्लुक़ की निशानी है, एक बुजुर्गी की भी निशानी है। शासन कहते हैं कि एक जानिब तो ये नून लीग दावे करती है कि हमारा अगर दिल करे या मन चाहे तो आज ही नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बहुत दफ़ा कहा है कि मिल के बैठते हैं, तहरीक जमात लाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? सीएम पंजाब के खिलाफ तहरीक एतमाद क्यों नहीं ला रही पंजाब हुकूमत, आपका साथ क्यों नहीं दे रही, इसकी क्या वजूहत है? मैं भी ये हो जो मेरी सोच है कि शेर के मुंह में हाथ डाले को, जो महंगाई है ये शेर की तरह मुंह खोल के बैठी है, तो सियासतदान भी बेचारे घबराते हैं। जो अच्छी चीज़ें हम छोड़ के गई है, जो आज भी हर बात पे कहते हैं, पहले कहते थे चोर चोर चोर, एनआरओ नहीं दूंगा, वो तो लोगों ने थक गए। जब लोगों ने कहा कि भाई अब आपका जेल नहीं चलेगा, तो फिर वो आ गए कि ये पुरानी हुकूमत की दी हुई है। भाई पुरानी हुकूमत ने तो आपको डॉलर 110 में दिया था, आपको पेट्रोल 70 रुपये में दिया था, आपको चीनी 55 रुपये में दिया था, आपको आटा 35 रुपये में दिया था। पुरानी हुकूमतों ने तो ये किया, तो आप पुरानी हुकूमत ने आपको कैसे फंसा दिया? खुद वो सस्ते में गए, तुम्हें फंसा के गए। तुमने तो कहा था मैं और सस्ता कर दूंगा। सर इससे यह किया है कि आप जो है मौजूदा हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी जो है वो शेर के मुंह की तरह। देखें, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं हुकूमत गिराऊँ, आ जाऊँ। अगर मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये कहता हूँ कि इसका हल इलेक्शन है, हुकूमत नहीं है। और आप कहते हैं कि इस हुकूमत को गिरा के और फिर हम आ जाएं, हम वोट ले लें, तो ये नहीं। इसका बिल्कुल बेस्ट वे ये है कि इलेक्शन में जाओ, इन हालात में आवाम से मैंडेट लो, जो हालात है, ये एक रास्ता है। बाकी ये नहीं है कि आप हुकूमत को गिरा के फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके खुद आ जाओ। सर आप जब में असेंबली के अंदर इमरान खान का जितने भी वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनका कहना ये है कि जो है महंगाई जो है पूरी दुनिया में है, पूरी वर्ल्ड में हुई है, तो सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें एडिशन है सवाल में कि एक नई मंतक का उन्होंने जो है इस मतलब तासुर दिया है कि महंगाई अल्लाह की तरफ से आती है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी जवाब देता हूँ मैं। एक बात आप लोग अगर उठा के माजी में जो हमारी मैशियत थी या दुनिया की मैशियत थी वो देख लें। 2008 में सारी दुनिया में रिसेशन था। अगर कोई जाए देख ले, ये अगर मेरी बात गलत साबित हो जुर्माना दो। सारी दुनिया में रिसेशन था और पाकिस्तान में सैलाब के ऊपर सैलाब था। पाकिस्तान में दहशतगर्द इस्लामाबाद से बाहर आ गए थे, सवात का ऑपरेशन हो गया और फिर 2 बरसातें 2 सैलाब आ गए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हुकूमत ने 135% सैलरी बढ़ाई। उसके बावजूद भी दुनिया में फसल बड़ी कम बनती है। गंदम पाकिस्तान में फसल नहीं थी जमींदार के पास। वो करते थे दिखाने के लिए कि भाई कुछ खाने पीने के लिए ढल के लिए मिल जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गंदम को फसल बना दिया। 900 रुपये हम रेट ले गए मगर आवाम के ऊपर बोझ बढ़ने नहीं दिया। 8 रुपये $120 का पर बैरल गया, बिजली 8 रुपये की थी। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी वो 11% पे चली गई, आज माइनस पे है। तो क्या वो उस वक्त तो रिसेशन थी दुनिया में, तो हम कैसे चले? महंगाई अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की तरफ से कौमों पे ऊपर अजाब आता है और जो इमरान की सूरत में हम पे है। अच्छा साहब, जेका सीड़पकारी आहे उहा बि घटिजी वई आहे। इन सां गॾु जेको पाकिस्तान जो इतिहादी आहे चाइना, उनजो बि ॿुधायो कोन्हे 50 सैकड़ो सीड़पकारी हिते पाकिस्तान में घटि गई आहे। कारण छा आहिनि आख़िर?
कॉन्फिडेंस, हुक्मरानों की इमेच्योरिटी। अभी इनकी कहानियाँ तो आपको जाने के बाद पता पड़ेगी ना कि दवाओं के रेट कैसे बढ़े, कितना मिला, किसको कितना मिला, और वो आदमी भी मौजूद, उसको निकाल इसलिए नहीं सकते कि वो राज खोल देगा। डैम के ठीके बगैर टेंडर के बगैर बात के 300 अरब का दे दिया अपने वजीर को। वो कितना उसको मिला, कितना उधर गया, कितना काम शुरू हुआ। कालाबाग डैम के लिए चंदा किया गया, वो पैसा कहाँ गया। बदकिस्मती से इस मुल्क की सबसे बड़ा अदारा तो अल्लाह की अदालत के बाद मुसलमानों की अदालत का बहुत बड़ा अदालत है, उसके एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया वो उसको नहीं करना चाहिए था, उसका काम नहीं था। आज वो लाहौर में नहीं घूम सकता, कहीं शादी बारात में नहीं जा सकता। ये कोई ज़िंदगी है? सियासतदान फिर भी आज सर उठा के चल रहे हैं। सर इदारे जो हैं अभी एक पेज पे नहीं रहे, तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट देख रहे हैं कि ऐसी तरीके को लाई जाएगी? सर देखें, मैं कहता हूँ इसका हल नो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका हल है न्यू इलेक्शन हो और ये हालात सामने रखते हुए लोग वोट दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।